پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفاہمت کی سیاست نہیں ہوگی، پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بار پھر ایک جارحانہ سیاست کی طرف جاری ہے، اور اتوار کو وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ان کو جو ریزرو سیٹس ہیں وہ مل سکیں، جو کہ بظاہر تو پاسبل نہیں لگ رہا۔ اس کے علاوہ جب ہم آج کور کمانڈر کانفرنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بڑا واضح پیغام، دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے کہ کچھ مخصوص عناصر مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ سانحہ 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے گی، انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا ذمہ داران کو ہر صورت میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن میں محفوظ ماحول فراہم کیا، اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بات بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ جو پیغام تھا وہ کہ جھوٹی اور جعلی خبروں کے حوالے سے تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے، اور یہ پروپیگنڈا جو ایک ڈیجیٹل کے اوپر چلایا جاتا ہے پاک افواج کے حوالے سے، تو اس کے اوپر بھی سخت تشویش کا اظہار کیا گیا فورم میں۔ اب ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں اس طرح کے پورے عمل کی، اور جو جس طرح کا پروپیگنڈا سیٹ کیا جاتا ہے، پھر جو بات چیت ہوتی ہے، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، تو ظاہر ہے اب یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور اس کے ذمہ داران کو قرار واقعی سزا بالکل ملنی بھی چاہیے، اور اب اس عزم کو اور اس موقف کو دہرایا بھی گیا۔ اس پہ مزید بات کریں گے۔ میں جوائن کیا ہے جناب محسن رضا خان صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ خان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں۔ محسن رضا خان صاحب سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ نہیں، اب مجھے آواز نہیں آ رہی۔ محسن رضا خان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ اب آ رہی ہے۔ ہاں صاحب کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں چونکہ 9 مئی کے حوالے سے آج ایک بار پھر کور کمانڈر کانفرنس میں اس چیز کا ذکر کیا گیا، زور دیا گیا کہ ذمہ داران کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف علی امین گنڈاپور جو ابھی کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی بوگس جو ایف آئی آرز ہیں ان کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کل قومی اسمبلی میں یہ بات بھی ہوئی۔ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اب ظاہر ہے آج بڑا دو ٹوک پیغام آیا ہے جو پریس ریلیز آئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے۔ دیکھیں، ایسے آئی ایس پی آر کے جو دو ٹوک پریس ریلیز ہیں اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں، لیکن 9 مئی کے واقعے کو بنیاد بنا کر جو پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی ہوئی ہے وہ صرف اس کا اثر پنجاب میں اور سندھ میں دیکھنے میں آیا ہے۔ باقی کے پی کے میں جو اس کے ذمہ دار تھے وہ چیف منسٹر بن گئے، اور ان کو حکومت یہ فوج کی جو تحقیق کی ہے این پی، اور اس کا اب کہنا یہ ہے کہ انہیں کنٹونمنٹ میں رکھا گیا اور ان کو چیف منسٹر اور بنا دیا گیا، اور ان کو الیکشن جیتنے کے لیے جو دہشت گرد تھے ٹی ٹی پی کے، ان کی حمایت حاصل تھی۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ فوج نے کچھ سندھ اور پنجاب اور کے پی کے بارے میں علیحدہ علیحدہ پالیسی رکھی ہوئی تھی۔ اب 9 مئی کو گزرے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، سال ہونے والا ہے سر، سال ہونے والا ہے، تو اس کے ابھی ذمہ داروں کو کیفے اقتدار تک پہنچانے کی باتیں جو ہیں بڑی عجیب لگتی ہے۔ جب فوج کا اپنا کوئی ایشو ہو تو اس کو تو سرجسی سماعت کی عدالتیں بنا دی جاتی ہیں اور وہ سب کچھ ہو جاتا ہے، تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ 9 مئی کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، بلکہ انہیں نوازا جا رہا ہے۔ تو محسن رضا خان صاحب اس کا مطلب یہ ہوگا جس طرح آپ نے بتایا، اور یہ سامنے ہے ظاہر ہے کے پی کی جو کیبنٹ بن رہی ہے، اور پھر جو سی ایم ہے خود وہ اس میں وہ تھے، تو اب پنجاب میں بھی تو جو لوگ ملوث ہیں کچھ کو آپ سمجھتے ہیں کہ ضمانتیں ملتی جائیں گی، آہستہ آہستہ ریلیف ملتا جائے گا مزید، اب تقویت، اب ظاہر ہے وہ کوئی جیت کے آ گیا، کوئی ایم پی اے بن گیا، کوئی ایم این اے بن گیا، تو اب یہ فیصلے بھی اور زیادہ مشکل ہو جائیں گے، یعنی پریشر بڑھے گا اور یہ معاملہ ڈیفیوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
देखें ये सब बातें जो है हम सुन रहे हैं 9 मई के बाद से, 10 मई से, 11 मई से, और और ये बातें पता ही नहीं कब तक सुनने को मिलेगी। जब कोई कार्रवाई होगी और उसके मुताबिक एक्शन लिया जाएगा तब इसकी हकीकत का पता चलेगा कि कितना पाकिस्तान फौज इसकी इसके जिम्मेदारों को कैसे कितना तक पहुंचाएगी। कि टिकट गवर्नमेंट में जब इनके पास खुला था तो तब इन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनकी जमानतें भी उठी नहीं और प्रेशर भी हुकूमत में बढ़ता गया इन लोगों को छोड़ने का। तो मुझे तो ये 9 मई के जिम्मेदार और ये मामला कुछ अजीब से लगते हैं। ठीक है, आगे जो एक और हिस्सा है इसमें वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि झूठी और जाली खबरों के हवाले से भी तशवीश का इजहार किया फोरम ने। और ये वो प्रोपेगेंडा आपने भी देखा कि अब आजकल तो बहुत ही सारी चीज़ें किसने कब कहा, क्या कहा, वीडियो एडिट हो जाती हैं, इस तरह के प्रोपेगेंडा सेट किए जाते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? देखें जो सोशल मीडिया है वो भी इदारों से तो बाहर नहीं है ना। जी जी। जो लोग चीफ जस्टिस को गालियां दे रहे हैं मुसलसल सोशल मीडिया पे, उनको तो वही हाथ नहीं लगाता और आम लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो जाती है। और मुझे लगता है कि ये कोई डबल गेम हो रही है जिसका हमें अंदाजा नहीं है अभी। अच्छा ठीक है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात ये कह रही है कि अभी आज भी उनकी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी कह रही है, अली मोहम्मद ख़ान भी ये कह रहे हैं कि हमारी तो ये कभी पॉलिसी नहीं रही, ये सारी चीज़ें कोई ट्रैप था वो हमारे गले में सब कुछ डाला जा रहा है। और बज़ाहिर ज़रा ट्रैप की हम बात करेंगे भी तो जो हमने देखा जैसे खान साहब के जो भांजे हसन न्याजी वो हमें वहाँ लाहौर में नज़र आए उस क्राउड को पुल करते हुए। तो ये सारी चीज़ें कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो बाज़ाहिर नज़र आ रही हैं। तो आप नहीं समझते कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है कि उसको भी ये तक़वियत मिलेगी जिस तरह आप को ये चीज़ें महसूस हो रही हैं कि शायद कोई डबल गेम है इसमें? तो जब एक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि हुकूमत के पास सबूत नहीं है और ये जानबूझ कर किया गया है। अगर हुकूमत के पास सबूत है और रियासती इदारों के आसपास सबूत है तो ये क्यों और कोर्ट कमांडर हाउस पर हमला करने वालों को तो एक बात कहना था कैसे एक कतार तक पहुंचा देना चाहिए था, बजाय इसके कि वो इलेक्शन भी लड़े हैं। और फैसलाबाद में जैसे शख्स ने ISI के हेडक्वार्टर पे हमला किया था जी, और उसको जमानत भी मिली थी, वो इलेक्शन भी लड़ा, इलेक्शन भी जीत गया। तो समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया मोहसिन रज़ा खान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और कन्फ्यूजन है कि मामला कहाँ ख़राब हो रहे हैं, कैसे कहाँ बन रहे हैं, इस पर मज़ीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है जनाब शाहनवाज जदौन साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शाहनवाज जदौन साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू ब्रदर। किस तरह देखते हैं? एक तो चूँकि आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा गया कि कुछ मखसूस अनासर हैं मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने 9 मई के ज़िम्मेदारान को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाने का कहा है, लाया जाएगा, इंसाफ होगा। किस तरह देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए ब्रदर, बिल्कुल हम भी कह रहे हैं कि 9 मई के उसमें जो भी मुलविस हैं तो उनको कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 7-8 महीने हुए हैं हम चीख के बोल रहे हैं कि कोई कमीशन बनाया जाए ताकि तयन तो हो सके ना कि आया कौन लोग मुलविस थे 9 मई में, किन लोगों ने 9 मई से फायदा उठाया और किन लोगों को 9 मई से नुकसान हुआ। ठीक, तो ये अभी तक कोई कमीशन नहीं बनी। खाली ये है ना कि अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता हूं, अगर मैं 9 मई में मुलविस हूं और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता हूं कि मैं मजम्मत करता हूं तो मैं दूध से धुला हुआ हूं। लेकिन अगर एक बंदा कि उसका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है और वो जेल में सड़ रहा है लेकिन सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहा है, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहा है, तो वो जेल में बंद है। तो बात यह है कि मेरे भाई, हम तो डे 1 से खान साहब ने यही किया था, बात की थी कि इस एक कमीशन बनाया जाए ताकि
पता लगे कि 9 मई में कौन लोग मुलविस थे और किन्होंने करवाया है। ठीक है, तो अभी तक अफसोस की बात है कि अभी तक कोई कमीशन नहीं बना। कमीशन ये ज़रा जुडिशल कमीशन आपकी तरफ से इसका मुतालबा भी किया जा रहा है। अली मोहम्मद खान भी अब थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे। अब दूसरी तरफ शाहनवाज जदुन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ज़रा आपके जो हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, प्रोटेस्ट अब करने जा रहे हैं इतवार को, चूँकि मखसूस नशिस्तों का मामला है। कोई यकीन है चूँकि 9 मार्च को तो अब सदारती इंतखाब भी हो जाएगा और इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ज़रा इन नशिस्तों को मिलाकर ही बनता है, तो ये सारी चीज़ें तो बज़ाहिर तो शेड्यूल हो चुकी हैं। तो आप समझते हैं कि आपके प्रोटेस्ट से और जो आप अदालत में जाना चाह रहे हैं, इससे कोई आपको रिलीफ मिलेगा? ये हम तो हर वो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे और हर फोरम पे जाएंगे जो हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। 180 सीटें नेशनल असेंबली की हमारी थी और हमारी तकरीबन कोई 90 सीटें जो ना हमसे छीन ली गई। इसी तरह सिंध के अंदर आप देख लें, कराची के अंदर हम वाज़ी अक्सरियत से जीते हैं। यहाँ से 17 सीटें कराची से हम जीते, 2 हैदराबाद की जीते हैं और तकरीबन कोई 37 सीट हम सूबाई असेंबली की जीते। देखिए मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं जी आवाज आ रही? जी हम सुन रहे हैं आपको। मैं अपनी मिसाल आपको दे देता हूँ कि मैंने PS 115 से इलेक्शन कंटेस्ट किया और मैं इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के के अवाम ने मुझ पे एतमाद किया और मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया। मेरे पास फॉर्म 45 भी है, मुझे फॉर्म 47 भी मिला, मुझे फॉर्म 48 भी मिला, मुझे फॉर्म 49 भी मिला और ECP की वेबसाइट पे भी आ गया कि विनर कैंडिडेट में हूँ। लेकिन दूसरे दिन मुझे पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया इन्होंने कि भाई आप तहरीक इंसाफ छोड़ दे, आप MQM ज्वाइन करें। ठीक। और MQM ज्वाइन करें वरना हम आपसे वो सीट वापस ले लेंगे, आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें वरना हम आपसे सीट वापस ले लेंगे। मुझे प्राइवेट नंबर से फोन आते रहे, मुझे डराते रहे, धमकाते रहे, लेकिन मैंने कहा कि मैं किसी सूरत तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी सूरत इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे हल्के के अवाम ने अगर दूसरी मर्तबा मुझ पे एतमाद किया है तो इमरान खान की वजह से किया है। तो तकरीबन 4 दिन बाद एक जाली रिकाउंटिंग के जरिए, मुझे ना पता था, उसूलन तो ये था कि मैं विनर कैंडिडेट था, अगर कोई एप्लीकेशन वहां रिकाउंटिंग के जमा हुई है तो मुझे इन्फॉर्म करते, मुझे नोटिस करते कि भाई ये रिकाउंटिंग के लिए कोई एप्लीकेशन आई है। लेकिन मुझे 4 दिन बाद पता लगा कि रिकाउंटिंग हो गई और आप 700 वोटों से हार गए। तो ये देख ले कि यहाँ पर इतने यानी जुल्म हो रहा है, इतनी यानी वो ठीक है, तहकीकात होनी चाहिए। मुतालबात आपके हैं, ज़रा प्रोटेस्ट में जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। बहुत शुक्रिया शाहनवाज जदुन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियाँ हैं, जुडिशल कमीशन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन आइनी फोरम और अब फॉर्मेशन हो रही है कैबिनेट की भी, सदारती इंतखाबात भी 9 मार्च को है। ये मामला अब आगे बढ़ना चाहिए और ये मुल्क किसी भी तरह की इस तरह की एहतजाजी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मफाहमत से आगे बढ़ना चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके और एक माशी इस्तेकाम आ सके। और माशी इस्तेकाम जुड़ा है सियासी इस्तेकाम से, और ये सब जितने भी हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर बैठेंगे तो मामलात आगे की तरफ चल सकेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।